Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize your unit number 23, which is capital structure. Okay, sorry, 24, and which is capital structure, right? So, पिछले 23 यूनिट्स के अंदर आपका जितने भी सारे आपका मॉड्यूल ए बी नाउ वी आर पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी, ठीक है। आई होप आपने पास किए हुए देखे होंगे। एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मॉड्यूल ए और बी आपका मिस किया है, सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विद मॉड्यूल सी, and after completion of module C and D, then you can start watching module A and B, right? तो when आज का जो टॉपिक है that is unit number 24, which is capital structure and cost of capital, right? So capital structure and cost of capital, you can expect at least 2 to 3 questions based on this particular unit. Again, examination viewpoint से अगर हम लोग देखें, so this is very important one, right? तो क्या क्या कोर्स कंटेंट है, let's have a quick look, ठीक है। So basic introduction, factor influencing decision on capital structure of a firm, theories of capital structure, taxation and capital structure, cost of capital, cost of debt, cost of preference capital, cost of equity. Then we have weighted average cost of capital, factor affecting weighted average cost of capital, weighted marginal cost of capital, determining optimal capital budget, and flotation cost and cost of capital. Then we have misconception about the cost of capital. So out of these given subtopic, there are few things which I'll highlight. First one, this, okay, theories. Then we have taxation, and then we have a concept of cost of capital, where we have weighted average cost of capital, right? We'll see number of time question based on this. Sometimes they ask theoretical question based on this also. So these are some subtopics. If you'll analyze last 3 to 4 year examination, you will see maximum time examiner they generally ask question based on those particular areas, right? तो हम लोग इसमें आपका स्टार्ट से एंड तक सारी चीजें समझेंगे, एंड again in next 30 to 35 minutes I'll try to summarize the entire unit, okay? And that will be more than enough for fundamental from the fundamental side, okay? So now first we'll talk about capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। देखो, अगर हम लोग बात करें, जब हमने इंट्रोडक्शन आपका एरिया पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे लेट्स से इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग फॉर देयर एक्सपेंशन और फॉर देयर ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड ऑल, ठीक है, तो उनको कैपिटल बजटिंग करनी होती है। लेट्स से देयर इज XYZ कंपनी, ठीक है। सो एक XYZ कंपनी आपका, those who are planning for expansion and their capital budget is suppose that 100 crore rupees, ठीक है। 100 करोड़ रुपए के साथ ये अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अब ये 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। सो दे अरेंज दिस पर्टिकुलर फंड, एंड फॉर दिस दे डिसाइड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डिसाइड होगा, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है। ये क्या है आपका, इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो सम पोर्शन दे अरेंज थ्रू इक्विटी एंड सम पोर्शन दे अरेंज थ्रू डेट, ठीक है। दैट मीन्स जैसे अब 100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, लेट्स से they decided their capital structure to 30:70, ठीक है। So 30:70, that means 30 crore they'll raise through equity, and remaining say 70 crore rupees they'll raise through debt. प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग एक चीज देखेंगे कि डेट पोर्शन हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू इक्विटी। तो इस पे आपका नेट इनकम थ्योरी बाय गिवन बाय डेविड डोरेंट्स, ठीक है, जो काम करती है, बिकॉज विद डेट वी हैव सो मेनी एडवांटेजेस, जैसे आपका फाइनेंशियल लिवरेजेस, टैक्सेशन बेनिफिट्स, या इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपका इफ यू इशू इक्विटी के बेनिफिट क्या होते हैं, you do not have to pay any interest on equity. Second thing is the con side is you lose the degree of control. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी है। So now if the question is कि what is the optimal capital structure for a firm, so it is totally depend on the business risk as well as financial risk, ठीक है। तो that means it will differ from one company to another. हर एक कंपनी के लिए उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली
like we need this much of money and how we are going to arrange that particular amount, कैसे हम लोग इसका arrangement आपका करने वाले हैं, ठीक है, कैसे आपका 100 crore rupees का arrangement होगा. Then just after this we'll come to the capital investment decision in our next unit. तो आज हम लोग आपको कहीं ना कहीं इनके अराउंड, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाता है, तो इनके अराउंड हम लोग आपका बात करने वाले. सो दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट आपका, ठीक है. सो क्या रेशियो हम लोग लेके चल रहे हैं while we are raising funds from the market, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से जो आपके अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आपका फंड्स के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है. So capital structure refer to the specific mix of debt and equity used to finance a company's assets and operation. From a corporate prospect, equity represent more expensive, permanent source of capital with greater financial flexibility, because here you do not have to pay any interest amount, but it is more expensive because you are losing degree of control in your organization, right? Debt and equity are the two primary type of capital sources for a business. Capital structure is defined as a combination of equity and debt that is put into use by a company in order to finance the overall operations, right? तो ये आपका बेसिक व्हाट. अब जैसे हमने इस सवाल का जवाब पहले भी डिस्कस किया कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. इट कैन बी 50-50, 60-40, 40-60, 70-30, 30-70. इट टोटली डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. वन इज बिजनेस रिस्क एंड अनदर वन इज फाइनेंशियल रिस्क. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ये अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. So optimal capital structure is referred to the perfect mix of debt and equity financing that help the maximizing the value of company in the market while the same time minimize its cost of capital, right? So अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, financial leverages. Okay, financial leverages means like इसको हम लोग trading on equity भी बोलते हैं. Usually what companies do, they generally raise funds and they increase their market value, they invest that particular money, they generally do the capital investment, ठीक है, and their ROI on those particular investments are higher than the average borrowing, ठीक है. तो आपका जैसे जैसे गवर्नमेंट करती है ना, बजट आपका लेके आती है, तो सपोज दैट किसी कंपनी ने 30 करोड़ का डेट लिया, उसने उसको इन्वेस्ट किया, 30 करोड़ का एवरेज बोरोविंग वाज सपोज दैट 10% एंड देयर आरओआई इज सपोज दैट 15%. सो दैट थिंग इज जनरली नोन एज आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या आपका फाइनेंशियल लिवरेज. जैसे कंपनीज दे बोरो डेट, they fund to operation, they made profit, ठीक है. So purchase asset, gain profit in return. So a financial leverage is when a company take debt for investing in business operation to gain profit in return. That is known as financial leverage. So financial leverage is defined as the proportion of debt that is part of the total capital of the firm. It is also known as capital gearing. हाई गेयरिंग और लो, हाई लेवरेज और लो लेवरेज, जो आपका डेट का पोर्शन ज्यादा रखते हैं हाईली लेवरेज, जो आपका लोअर साइड रखते हैं वो आपका लो लेवरेज. सिंपल सा आपका, ठीक है. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई वी अडॉप्ट दैट डेविड डोरेन नेट इनकम थ्योरी, कि उनके हिसाब से कि डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर फर्म एज वेल एज आपका जो अदर बेनिफिट, जैसे टैक्सेशन के बेनिफिट, लाइक इफ यू पे इंटरेस्ट ऑन दैट डेट, सो आपकी जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, मतलब जो आपकी इनकम है उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, देन यू विल पे द टैक्सेस, ठीक है. तो वो बेनिफिट यहाँ पे आपके आते हैं, ठीक है. So factor affecting capital structure. Whenever we decide our capital structure, there are few things which we have to keep in mind. There's a cost of capital, which is a combination of cost of equity plus cost of debt, and cost of equity is always higher than cost of debt, right? Degree of control in case of if you'll finance your capital structure more through your equity portion, so that means you'll lose your degree of control in your organization. जैसे किसी organization को आप 100% से own करते हो, किसी ने आपको बोला हम आपको 5 करोड़ देते हैं, आप हमें 90% ownership दे दो. So you are raising funds but you are losing your control over that particular organization, ठीक है. Trading on equity, financial leverages, we just talk about this, and you have to like जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी हैं जिस कंट्री में भी हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है. Now the next thing is theories. Whenever we decide our capital structure,
तो यहाँ पे तीन थ्योरीज आपकी है, ठीक है, जिसमें पहला आपका नेट इनकम थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस आपका, दैट इज नेट इनकम थ्योरी गिवन बाय डेविड डुरेंट, ठीक है। नेट इनकम थ्योरी आपका, इसका समरी क्या है कि इस डेविड डुरेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें इक्विटीज टू डेट के रेशियो का, ठीक है, सो एज पर डेविड डुरेंट योर डेट पोर्शन शुड बी हायर साइड कंपेयर टू योर इक्विटी। इन्होंने बोला कि आप डेट का पोर्शन जितना ज्यादा रखेंगे वो आपको हेल्प करेगा अपनी आपकी कंपनी के मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने में, ठीक है, कंपेयर टू योर इक्विटी। और डेट के साथ आपका टैक्सेशन के बेनिफिट होंगे, फाइनेंशियल लिवरेजेस, ये सारी चीजें आप ले पाएंगे। सो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल ऑल्सो, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, net operating income theory, it is also known as irrelevant theory। इनके हिसाब से आपका इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बनाने से कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर आप डेट का पोर्शन कितना भी ज्यादा कर लो, उसका मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। सो इररिलेवेंट थ्योरीज को हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि डेट और इक्विटी या जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरी आपका जो अगेन विच सपोर्ट नेट इनकम थ्योरी टिल सम एक्सटेंट, ये बोलते हैं कि आपका डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए बट एक सर्टेन लेवल तक। अगर आप उस लेवल को ब्रीच करोगे तो इसके बाद इसके नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। सो वी हैव दीज थ्री थ्योरीज। तो पहला आपका दिस थ्योरी इज गिवन बाय डेविड डुरेंट, जैसे हमने इनका नाम लिया बहुत बार, आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट in the overall capital structure. According to him, debt is a fund source because it has lower interest rate, eliminating the risk factor and playing a significant role in deducting expenses for the income tax. That means जैसे हमने आपका हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर इज सपोज दैट 100% आपका डेट के थ्रू फाइनेंस कर रखा है, ठीक है, और डेट है हमारे ऊपर 1 करोड़ का जिसपे इंटरेस्ट है आपका 10% का। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सपोज दैट वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ सपोज दैट हमने आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। सो वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट आपका सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर सपोज दैट 1 करोड़ रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 करोड़ का 10% इज योर कैप डेट, ठीक है। तो दैट मीन्स इस साल का जो इंटरेस्ट होगा से इस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा इंटरेस्ट। सो 10% ऑफ 1 करोड़ इज 10 लाख रुपीज, सो 90 lakh. So now taxes will be like we need to pay taxes on 90 lakh, ठीक है। So 90 lakh का 25% you have to pay taxes। अब सोचो दूसरी तरफ अगर 100% आपका इक्विटी होता, अगर ये 100% इक्विटी होता है, इक्विटी पे हम इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, तो योर टैक्सेस विल एप्लीकेबल ऑन 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज का 25%। सो ये एक बेनिफिट आपका जो इनके द्वारा यहाँ पे हाईलाइट किया गया, ठीक है। सो यहीं से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। व्हेन वी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट सो इट विल डिक्रीज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे आपको लीड करते हुए जानी है, ध्यान रखते हुए जाना, आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। So according to the approach, capital structure decision is relevant to the value of a firm. An increase in financial leverage, that means debt portion, will lead to decline in the weighted average cost of capital, ठीक है। जैसे सिंपल सा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या आगे लिखा है पूरा अच्छे ढंग से, प्लस पोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, अगर आपका सपोज दैट पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 50% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज सपोज दैट 16%, ठीक है। पोर्शन ऑफ डेट इज 50% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज सपोज दैट 10%। अब क्या होगा, अगर हम डेट के पोर्शन, अभी क्या है आपका 50:50 है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं आपका 30:70, 30% इक्विटी, 70% डेट। सो नाउ अब जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट विल कम डाउन, क्यों, क्योंकि आपका डेट का पोर्शन क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है, कुछ इस तरीके से। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, हाँ है ना, ठीक है। तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। जैसे यहाँ पे आपके बुक के अंदर केस दिया गया, एबीसी हैज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 50-50 पहला, एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेट इनटू पोर्शन ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू पोर्शन ऑफ इक्विटी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है इनका, आपका 13%, ठीक है। एज
जब इनका आपका इक्विटी और डेट का पोर्शन इज इक्वल 50-50, तो कितना है आपका 13%। अब अगर हम इसको चेंज कर दें 60 डेट पोर्शन एंड 40 इक्विटी पोर्शन, तो दिस विल कम डाउन। 13% आपका क्या होगा, कम होगा। जैसे आपका नाउ इट विल 10 इंटू 0.06 प्लस दिस, सो इट इज 12.40। तो अगर हम लोग पोर्शन ऑफ डेट इंक्रीज करें, सो इट विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, नीचे आएगी। तो इसीलिए डेविड डोरन की ये थ्योरी आपका यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जस्ट रिमेंबर दिस वन, यहां से नहीं बल्कि नेट इनकम थ्योरी से 90% टाइम विल गेट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा थ्योरी को बेसिक समझ लें। ऑल्सो नोन एज इररिलेवेंट थ्योरी, it also given by the, again this is by the David Duren only, ठीक है। It adapts it that the company market value is not affected by the changes in capital structure. So according to this approach, capital structure decisions of the firm are irrelevant. So यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इसका कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। ट्रेडिशनल में आपका इजरा सोलोमन, the assumption of the approach are quite relevant to the net income theory, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, this theory support net income theory, but इन्होंने बोला कि we should increase portion of debt but till a certain extent, ऐसा नहीं कि आप उसको 100% कर दो, ठीक है। The main principle behind this theory is to increase the proportion of the debt to a certain limit in the capital structure, okay. So this approach favor that result of financial leverage of up to some point, cost of capital come down and value of firm will increase. However, beyond this point, reverse trend will emerge, ठीक है। अगर आप उस लेवल को पार करोगे तो आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब एक और चीज, व्हेन वी इंक्रीज द पोर्शन ऑफ डेट, तो हमें टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, तो सेम आपका यहाँ पे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इंटरेस्ट on debt funds allow to deduction as it's a business expenditure, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जब हम लोग एबिट कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जर्नी क्या होता है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, देन हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, देन माइनस करेंगे टैक्सेस, ठीक है। तो आपका ये जो पोर्शन है, दिस विल हेल्प यू इन टैक्सेशन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट फंड इज treated as the revenue expenditure, so it can be claimed as deductions in computing the total income in your profit and loss account, ठीक है। सिंपल सा बात है, इक्विटी, जब हम लोग इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करें, वी आर नॉट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ fixed return on those particular one. Equity return are subject matter to market risk, right? So it totally depend on market factors. But debt के थ्रू जब हम लोग फंड्स रेज करें, वो बॉन्ड्स हो या लोन हो, तो वहां पे हम लोग कमिटमेंट करें कि हाँ इतना परसेंटेज का हम आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका when determining a capital, this is electing, हाँ केस से आते हैं, केस से समझते हैं, डायरेक्टली आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सो एबीसी कंपनी हैविंग अ टोटल कैपिटल ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए का इनका बोरोविंग है, ठीक है, टोटल आपका। EBIT is 1 lakh for the year, इनकम टैक्स is 25%, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 12%, सो 12% ऑफ, मतलब आपका 2 लाख का 12% इज 24,000, तो 2 लाख में से 24,000 माइनस करोगे। अगर 100% डेट है, अगर 50% है तो 12% माइनस कर लोगे, ठीक है। जैसे तीन सिनेरियो दिए हैं, सिनेरियो ए 1 100% डेट, बी आपका 50% डेट 50% इक्विटी, यहाँ पे 12,000 का बेनिफिट होगा, यहाँ पे 24,000 का होगा, एंड यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज 2 लाख रुपए के, सॉरी 1 लाख रुपीस के ऊपर आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, आपका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे इबिट आपका कितना है 1 लाख, जो कि हमारा क्या है, अर्निंग है ये 1 लाख रुपए, ठीक है। आपका सिनेरियो डेट हमने लिया है 2 लाख का, सिनेरियो ए आपका जहां पे 100% डेट है, तो 24,000 माइनस हो जाएगा 76,000 आपका, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। ओवरऑल इनकम अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो इट विल 57,000, क्योंकि आपका टैक्स का जो डेट आपका जो टैक्सेस होंगे, टैक्सेस बर्डन विल बी लेस इन दिस केस, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैक्स आपका 19,000, यहाँ पे 22,000, यहाँ पे 24, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 100% आपका डेट इक्विटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका दूसरे केस में 1 लाख 1 लाख 1 लाख आपका इक्विटी 1 लाख डेट, सो 12,000 का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 2 लाख सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, तो इंटरेस्ट जीरो रह जाएगा। 1 लाख आपका, सो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको सीधा 25% का क्या देना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स आपका पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेनिफिट आपका जो टैक्सेशन का देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो क्या होता है जनरली, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी और डेट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। देखो क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी आपका इट कैन बी ऑर्डिनरी, इट कैन बी प्रीफरेंस। डेट में आपका इट कैन बी बॉन्ड्स, आपका टर्म लोन, अलग अलग लोन हमने लिए हैं एट डिफरेंट डिफरेंट रेट, तो उसका एवरेज आपका जो आपको काउंट करना होगा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कैपिटल ऑफ अ फर्म represent a long-term source of fund shown in the balance sheet as liabilities. It consists both debt and equity. बहुत basic है। तो कैलकुलेशन कहाँ से होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। बहुत ही बेसिक और बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे अभी पास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो जैसे कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सॉरी पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 40%, प्रीफरेंस शेयर्स पोर्शन इज 10%, डेट इज आपका 50%। तो इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर्स और आपका डेट, ठीक है, डेट को एक साथ रखा है इन्होंने, तीनों का पोर्शन आपको दिया गया, ठीक है। अब इनकी फाइनेंसिंग अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 40%, 20%, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर इज 15%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, पोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस पोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस पोर्शन ऑफ डेट इनटू आपका कॉस्ट ऑफ डेट, सबका टोटल इज योर आउटकम। अब ये आपका कितना आ रहा है, 14.50%। अब इसी में अगर वो आपको आगे लीड करके दे दे कि नाउ let's say company is planning to increase their portion of debt from 50% to 60%, so what will be the impact on your weighted average cost of capital? So your answer will be your weighted average cost of capital will decrease, ठीक है, क्योंकि cost of debt is lower as compared to cost of equity and preference shares. Understood? ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट एक ऐसा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विच वर पार्ट ऑफ योर मई जून 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे कैलकुलेशन के लिए देगा, कई बार आपको इस तरीके से दे देगा। अब एक ये पॉइंट भी कई बार वो पूछ लेता है, ठीक है, स्टैटिक है बट हाँ ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी एक बार देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहला इंटरनल, जिसमें आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड। एक्सटर्नल आपका इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, risk perception and market premium, and rate of corporate and personal taxes. Just do remember these 6 statements, so this is definitely going to help you. This is all about your capital structure and cost of capital. I hope सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, कैसा लगा जरूर कमेंट्स में आपका लिख के बताएं, ठीक है। और इसके अलावा अगर पसंद आया तो अपने साथी बैंकर्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो उनको भी इन सेशंस का आपका बेनिफिट मिले, ठीक है। सो यूनिट नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एंड योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं। एंड आई ऑलवेज, जैसे मैं आपको हमेशा बताऊं कि यार मॉड्यूल सी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी, जो आपको मतलब दिस कैपिटल स्ट्रक्चर वाला थिंग इज डेफिनेटली विल सी इन योर एबीएफएम पेपर इन मॉड, आपका सीआईबी एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है, वहां पे भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM, ठीक है। और आपका जेआईबी के एग्जाम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, 6 से आपका, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्दी से फिल कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेशन किया है। फर्स्ट यू हैव टू टेक मेंबरशिप ऑफ आईआईबीएफ, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक मेंबरशिप ऑफ आईआईबीएफ, जहां पे वो आपसे चार्ज करेंगे 1600 प्लस जीएसटी। Then once you log into that particular one, you'll see left side आपका एक option आएगा apply now. So with that you'll have to apply for October November 2024 and they'll charge you 4000 for first time. अगर first time में 4000 plus GST आपका, ठीक है। So be prepared. जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपका नियर बाय वेन्यू मिल जाएगा एंड टाइम स्लॉट आपके हिसाब से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वो चीजें जो रहती हैं उनको आप इससे कर लीजिए, राइट। So guys, this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.